Welcome back, my dear students of grade 7. In the last video, we have studied about the different climatic zones, and we also studied about weather and climate. The main factors that affecting the weather and climate of any area are temperature, atmospheric pressure, and the winds that blow in that area. And today we will study about the factors that affect the temperature of an area and how this temperature affect the climate of any area. Let us start today's work. Factors affecting the temperature. First is latitude. Since the earth faces the sun in inclined position and rotates on its axis, two important phenomena take place. Places near or on the equator receive more the heat than the places away from the equator, and duration of the days and night varies from equator towards the pole. Longer the day, the hotter it is. In the northern hemisphere, days in the summers are long and hot. तो फर्स्ट फैक्टर जो है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है दैट इज़ द लैटीट्यूड, कि आपका एरिया किस लैटीट्यूड में है. एज यू नो द अर्थ फेसेस द सन एंड इट इज़ इंक्लाइंड पोजिशन एंड आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. दैट्स वाई द प्लेसेस, all the places not get the equally sun rays. They are different according to their latitude. That's why the area which are near the equator receive more heat from the sun as compared to the area that are away from the equator. Let us make it clear from the diagram. See, these are the different latitudes on the earth, that are the imaginary lines, and each latitude doesn't get the same heat. The regions, the area near the equator or on the equator get more heat as compared to the area that are farther or away from the equator, because सन की जो हीट है सब जगह एक जैसी नहीं होती. क्यों? क्योंकि अर्थ आपकी इंक्लाइंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, और सन की रेज हमेशा सभी लैटीट्यूड पर एक जैसी नहीं पहुंचती. और जो अर्थ का जो भी पार्ट सन की तरफ इंक्लाइंड होगा, झुका होगा, वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी. जैसे कि इस डायग्राम, दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, और साउथ पोल इंक्लाइंड है सन की तरफ, जिस कारण से इस एरिया में ज़्यादा हीट आ रही है. और जहाँ पर समर सीज़न होगा और जहाँ पर जो डे longer होंगे as compared to night. And second factor is altitude. Altitude means height. Weather and climate conditions on the earth prevail only up to the upper limit of the troposphere. Within this limit, temperature decreases with height. That is why it is cooler at the top of mountains than at the bottom or on the plains. Example, Shimla is cooler than the Ambala because it is located on the top of the hills and Ambala lies below the plain. Clear? जो altitude है that is the height from the sea level also affect the weather and climate of any area. हमारी अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर की लेयर है दैट इज़ ब्लैंकेट ऑफ एयर, एंड उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल पावर के कारण अर्थ ने उसे अपने साथ बाइंड किया हुआ है, जिस कारण से जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है और वहाँ पर वी फील कूलर. वहाँ यानी जहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है. जैसा कि अगर हम देखेंगे शिमला जो कि माउंटेन एरिया में है, हाइट पे है, वहाँ पर टेम्परेचर कूलर होगा एज़ कंपेयर टू द अम्बाला जो कहाँ पर लोकेटेड है, इन द प्लेन एरिया. सी इन दिस डायग्राम द हाइट फ्रॉम द सी लेवल आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ एनी एरिया. क्लियर? जितनी हाइट पे जाओगे वहाँ पर टेम्परेचर कूल होता जाता है बिकॉज एयर प्रेशर कम हो जाता है. और सी इन दिस माउंटेन्स
अगर माउंटेन एरिया पर है जाएंगे वहाँ पर हमेशा स्नो होगी क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सन हीट्स अप एंड कूल डाउन land areas more quickly than the water bodies. That is why Mumbai on the Arabian Sea coast is cooler in summer than Delhi, which lies far away from the sea. Places near the sea have equable climate and the places away from the sea have the extreme climate. कि आपका एरिया सी से कितनी दूर है वो भी इफ़ेक्ट करेगा उस एरिया की क्लाइमेट पर, क्योंकि सन जो है, जो लैंड एरिया है और जो वाटर बॉडीज़ हैं, दोनों को जो हीट अप करता है उसमें डिफरेंस होता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी होती है, जबकि वाटर बॉडीज़ देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। दैट अफेक्ट द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ एनी एरिया। सी इन दिस डायग्राम, जहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पर लैंड एंड सी, जो सन की हीट है दिन के समय पे लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, पानी देर से गर्म होगा, जिस कारण से जहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा और जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठती हैं, और जहाँ पर ठंडी कूल ब्रीज है वो लैंड की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ नोन एज कूल सी ब्रीज। और इन द नाइट इससे ऑपोजिट होगा, जो आपका पानी अब गर्म हो चुका है लैंड ठंडी हो जाएगी। तो जहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया है, जिस कारण से गर्म हवाएं सी की तरफ से लैंड की तरफ आएंगी और ठंडी हवाएं लैंड से सी की तरफ जाएंगी। तो ये जो आपकी लैंड ब्रीज है और सी ब्रीज है, दैट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। और जो एरियाज़ आपके सी के आसपास होते हैं वहाँ पर इक्वेबल यानी जहाँ ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में कम डिफरेंस होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं रहता, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड्स। Winds blowing from the warmer region raise the temperature and the winds blowing from the colder region lower the temperature of a place. Winds blowing from the sea lower the summer temperature and raise the winter temperature. अब की जो विंड्स अब कौन से एरिया से स्टार्ट हो रही है, अगर वो एरिया लैंड एरिया से स्टार्ट हो रही हैं, जब वार्मर रीजन से स्टार्ट हो रही हैं तो वहाँ के आसपास के टेम्परेचर को रेज कर देती हैं, जबकि अगर वो सी के आसपास के एरिया से यानी कूल एरिया से ब्लो करती हैं तो वहाँ के टेम्परेचर को वो कूल कर देती हैं। लेट अस मेक इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। सी इन दिस डायग्राम, अगर जो विंड्स हैं लैंड की तरफ से आ रही हैं, विंड फ्रॉम द वार्मर रीजन, तो वहाँ के आसपास के एरिया के टेम्परेचर को रेज कर देती हैं। अगर सी की तरफ से आ रही हैं विंड्स तो वहाँ के आसपास के एरिया को कूल कर देंगी। Next is ocean current. There are both warm and cold ocean current circulating across the world. Ocean currents supply moisture and heat or cool winds, which then raise or lower the temperature of coastal areas. Ocean current क्या होते हैं? That are the small rivers or that flow in the same direction, जो एक ही direction में flow करती है ocean के अंदर, that are known as ocean current. These are of two types, that is warm ocean current and cold ocean current. अगर ये आपकी ocean current इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो इक्वेटर क्या है? हॉट एरिया होता है, पोल्स कूल एरिया, तो वार्म करंट वो बनेगा। अगर वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर कोल्ड करंट बनेगा, जिस कारण से वहाँ के आसपास का टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है। अगर वार्म करंट है तो वहाँ का आसपास का एरिया जो है वहाँ का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। अगर कोल्ड करंट है तो वहाँ के आसपास का जो कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स। हिमालयाज विच लाइज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन प्रिवेंट कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू एंटर इंडिया। इट मेक्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वार्मर। इसके अलावा जो डायरेक्शन होती है माउंटेन्स की, दैट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। जैसे इंडिया में हिमालयाज़ जो नॉर्थ ईस्ट साइड में लोकेटेड है
और ईस्ट साइड से आने वाली कोल्ड विंड्स को प्रिवेंट करते हैं इंडिया में एंटर करने से, जिस कारण से इंडिया का टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं हो पाता, कूल रहता है, मॉडरेट रहता है। अगर जहाँ सपोज करो माउंटेन्स ना होती तो जहाँ से जो कूल विंड्स आ रही है आर्कटिक सर्कल से इस साइड से, तो हमारे इंडिया का टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो जाता। क्लियर? इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एनी area. Temperature of any area is aspect. South facing slopes in the northern hemisphere receive direct sunshine and are therefore warmer than the north facing slopes. This is called the aspect of the land. Aspect means होता है कि जिस एरिया में आप हो वहाँ की जो स्लोप है वो किस साइड से है, डायरेक्शन यानी सनशाइन सन की तरफ है डायरेक्शन, तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। अगर सन की तरफ फेस नहीं कर रही है तो वहाँ पर हीट कम हो रही, जिस कारण से वो भी अफेक्ट करेंगे वहाँ के टेम्परेचर को। सी इन दिस डायग्राम, साउथ फेसिंग स्लोप रिसीव फार मोर सनशाइन दैन द नॉर्थ फेसिंग वंस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखो, जहाँ पर जो सन की तरफ जो स्लोप है वहाँ पर हीट ज़्यादा आ रही है और जहाँ पर हीट कम आ रही है, जिस कारण से ये एरिया है वो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, जिस कारण से जहाँ पर These are the various factors that affect the temperature of any area and weather of any area. Thank you for watching the video.